and not the least reviving Swamiji's passionate call to the youth, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Continuing this legacy of motivational vigor, we are immensely delighted to announce that we have here amongst us Mr. Sandeep Maheshwari, the founder and CEO of Images Bazaar, the world's largest collection of Indian images. A world record holder in photography, he has also been honored with many awards and accolades in recognition of his work. He created a world record in fashion photography, which was published in the Limca Book of Records 2004. Further, he is also the recipient of Star Youth Achiever Award, instituted by the Global Youth Marketing Forum, and the Youth Creative Entrepreneur Award by the British Council, a division of the British High Commission. Significantly, thus pursuing his passion over the years and representing India through his images to the entire world, Mr. Maheshwari is glad to claim that, I quote from his interviews, "The photography is not a commodity, but an art, and for me as well as for my team, it's all about creative satisfaction. Nothing more or less than that." So he takes pride in asserting that few years down the line, the whole world would see India through our eyes. India is not a word, it's an image, and we are creating an image of India like never before. As an iconic figure of Indian youth and an exemplary figure of success, he has been a real-life inspiration for thousands of individuals. His own life is a remarkable story of endurance, challenge, and indomitable will to transcend the innumerable adversities. Belonging from a very middle-class family and starting his career as a freelance photographer without any permanent studio at the initial stage, he has now achieved such a stature of fame that many of us only dream of. No wonder his life-changing seminar has had decisive impact on many individuals, making them think beyond the horizons, not to fear the risk, and lastly, to amass enormous courage to move forward and better others' life, fighting the hurdles. I came across this seminar, and unbelievably, every single word still then reverberates within me. His witty perception, genuineness, and basically his honesty has appealed me most. So humorously presented, yet so powerful in thought, his talk has compelled me to take up a very positive approach and confront situations that I had previously escaped. To admit on a personal note, he evoked a great admiration as a great human being. Being a self-made man and entrepreneur, he distinguishes himself by running an organization based on healthy mutuality and not on crash marketing techniques. It really made me rethink and redefine what actually success means and what does our society demand from us. So, today, before meeting such a living inspiration, let's have a very small glimpse of his life-changing seminar, and we will have a video play of this seminar here. I just request all of you to either switch off your mobiles or just put it on silent mode and just have a glimpse of this seminar, which I am sure will surely charge up and give you a short glance of the inspiration that you are soon going to meet. Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. मैं जब छोटा था मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे जैसे बड़ा हुआ दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। उसमें से सबसे बड़ी वजह थी जब मैं 10th क्लास में था, तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में, वो रातों रात खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफी खराब हो गई। अब ऐसे में दो चीजें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज होती है जो टूट जाती है, बिखर जाती है, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दूसरी फैमिलीज होती है जो और पास आ जाती है। हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज हुई। मैं, मेरी मदर,
मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सबने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अब क्या था, मैं चाहता तो था कि कुछ हो, मानता क्या था, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लैंड इनफर्टाइल थी। उसके बाद हमने कई चीजें ट्राई करी, जैसे एक खजूर का बिजनेस किया था हमने, मतलब खजूर के पान बनाती थी मेरी मदर, और मैं जा करके वो जो डब्बे में पान होते थे खजूर के, वो जा करके लोगों को देता था कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक पर्चे बनवाए थे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे वो देते थे। वो काम इतना नहीं चला, वो बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक एसटीडी पीसीओ की शॉप खोली, फोटो स्टेट की, एसटीडी की, पीसीओ की। वहाँ पे मेरी मदर बैठती थी, कई बार मैं भी जाकर के बैठता था वहाँ पे, और वहां पे जाकर के तो मेरी लैंड और इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि वहां मैंने लोगों को देखा 25-25 पैसे के पीछे अपनी मदर से लड़ते हुए। कई बार अंदर से गुस्सा भी आता था, लेकिन क्या करता, लाइफ यही है। तब मुझे लगा कि यार सच में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद में कई जगह इंटरव्यूज के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। ऐसा लग रहा था महाभारत का वाला एपिसोड चल रहा था। क्या हो रहा है। ओके, सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी भी कुछ गड़बड़ है यार। मैंने पूछा था यहाँ कितने लोग मानते हैं, जेन्युइनली मानते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म होना जरूरी है। ऑलमोस्ट सब लोग मानते हैं। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं ना यार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन अगर ये सेमिनार थोड़ा सा भी बोरिंग हुआ तो मुझे नींद आ जाएगी। पीछे ग्रीन रूम है, वहां जाकर सो जाऊंगा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ, आप कुछ मजा आया। एक तो ये टाइम भी ऐसा होता है ना कि अभी अभी खाना खाया है पेट भर के, उसके बाद मन करता है थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ओके, सो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई नीड अ वॉलंटियर हियर। वन वॉलंटियर, कोई भी जो भी जल्दी आ सके, यहां पे जल्दी पहुंच सके। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ। व्हाट्स योर नेम? लेट्स गिव इट फॉर अंकुर। हाय। ओके, सो अंकुर, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, तो आप चूंटी मारना जरा। ये क्या यार, चूंटी को इंग्लिश में क्या? पहले वो गुलगुली कर रहे थे, बाद में पता नहीं क्या कर दिया एकदम से। थैंक यू सो मच। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अंकुर। या, थैंक्स थैंक्स। ओके, सो मैंने इसलिए किया, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या चक्कर है, मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूं आज? क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब मैं 7th या 8th क्लास में था और कोई भी मुझसे पूछता था कि बेटे तुम क्या करोगे 12th के बाद में, जैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं, रिलेटिव्स और अंकल आंटीज और वो, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि पहले तो मैं 12th के बाद में IIT में जाऊंगा, ट्राई नहीं करूंगा, जाऊंगा। उसके बाद मैं IIMS में जाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। और अपना BCom भी पूरा नहीं किया मैंने। सो ये जो आज मैं यहां पर हूं, इट्स रियली अ बिग डे फॉर मी। इट्स बिग डे फॉर मी। हो सकता है आपके लिए ये चीज इतनी मैटर नहीं करती, राइट, बिकॉज यू आर हियर। तो जो चीज हमारे पास होती है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास में हमारे लिए नहीं होती, एंड मेरे से अच्छा वो कोई नहीं जान सकता क्योंकि मैं मैरिड हूं। सो आई नो दैट शादी के बाद में क्या होता है। सो ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। रीजन बीइंग कि मेरा एक सपना पूरा हुआ है। और जब मैं अंदर घुस रहा था ना यहाँ पे इस कैंपस में, जब मैंने बाहर IIT लिखा हुआ देखा, जब एक कट आता है वहां पे पीछे, जब मैं आ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था IIT राइट साइड में 6 किलोमीटर। तो आई कांट एक्सप्रेस कि मैं कैसा फील कर रहा था। आई वाज फीलिंग वेरी गुड। तो अल्टीमेटली मैं बैठना वहां चाहता था जहां अभी आप लोग बैठे हुए हो, लेकिन डायरेक्ट यहां पहुंच गया। सो अब मैं अपनी लाइफ के आपके साथ में 3 ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं। अगर आप में से किसी ने मेरा ये पूरा सेमिनार देखा हो, ये देख करके तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं किस जोन में हूं और कितना चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अगर किसी ने पूरा देखा हो तो उसको समझ आएगा कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा,
कि ये जो इतनी हाई पिच पे सेमिनार पहुंच गया था. दिस इज द लास्ट 35 मिनट्स ऑफ दैट सेमिनार. तो अगर पूरा देखते तो शायद ज्यादा अच्छा. किसी ने यहाँ पे पूरा देखा है मेरा लास्ट सेमिनार? ओह, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन दैट. ओके, सो उस पूरे सेमिनार में मैंने एक ही बात बोली है कि अनलाइक लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है लाइफ चेंज होने में, जिंदगी बदलने में, मेरा शुरू से यही मानना रहा है, आज भी यही मानना है कि सिर्फ 1 सेकंड लगता है. 1 सेकंड काफी होता है. 1 सेकंड मतलब एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है. 1 सेकंड में लाइफ इधर होती है, अगले सेकंड में इधर होती है. तो ऐसे 3 सेकंड्स मेरे जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. ऐसे मेरे 3 दिन लाइफ के, जिसके बाद में मेरा जो लाइफ था वो पूरे तरीके से चेंज हुआ. डे 1, मैं रोज की तरह रात के करीबन 11 बजे हुए थे. इट वॉज इन द ईयर 2006. वॉलीबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ में. उसके बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे. 11 बजे रात को पार्क में वॉक कर रहे थे. और मेरा वो जो दूसरा फ्रेंड था वो बहुत खुश था और मैं परेशान था. मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट. वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको एक कैंपेन मिल गया था. मतलब ही वॉज अ मॉडल, तो उसको एक एड कैंपेन जिसके लिए वो 3 महीने से ट्राई कर रहा था, उसको मिल गया था. तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड. कहता संदीप यार पार्टी करते हैं, ये करते हैं. और मैं इसलिए परेशान था, मैं बल्कि परेशान एक बहुत छोटा वर्ड है, मैं कहूँगा कि मैं डिप्रेस्ड था और मैं ऑलमोस्ट हार मान चुका था. मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो 2005 में जब ये इमेजेस बाजार का आइडिया आया था, ये जो वेबसाइट है, इस पे काम शुरू हुआ. 1 साल तक दिन रात इसके ऊपर काम चलता रहा. और 1 साल बाद में 2006 में जब इसको लॉन्च किया तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर. इट वॉज अ फेलियर. 3 महीने बाद बंद करने की नौबत आ गई थी. और सिर्फ वही नहीं बंद होता, और भी बहुत चीजें बंद करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि मैं अपना सब कुछ उसमें लगा चुका था. जितना भी मैंने कमाया था, जितना भी जोड़ा था, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा भी लिया था, फ्रेंड से, यहाँ से वहां से, सब कुछ लगा के उसको किया था. एंड आई वॉज 110% श्योर कि इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस. एंड इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर. रीजन वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम फोटोग्राफी बैकग्राउंड. तो फोटोग्राफी की मेरे को अच्छी नॉलेज थी, लेकिन आईटी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था. उसकी मेरे को ABCD भी नहीं पता थी. तो जब ये साइट लॉन्च हुई तो मैं सिर्फ डांस करता रहता था. पहले मैं जाता था अपनी सॉफ्टवेयर टीम के पास में, उनसे जाकर के पूछता था. मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है? वो कहते थे हार्डवेयर का इशू है, सर्वर पे लोड ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. हार्डवेयर वालों के पास जाता था तो वो बोलते थे कि कोडिंग की प्रॉब्लम है, कि सॉफ्टवेयर वालों की प्रॉब्लम है. तो मैं इधर उधर घूम रहा था और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करूं. मैं बस थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता था अपनी सॉफ्टवेयर टीम पे, उनको बोलता था यार कुछ तो करो, कुछ तो करो. तो वो थोड़ा सा कुछ अपडेट करते थे और दिखाने के लिए साइट को रिवैम्प कर देते थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था. 3-4 बार ऐसी चीज हुई. ऑलमोस्ट 3 महीने निकल गए तो मैंने सोच लिया था कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था. इतना टाइम भी नहीं था कि अब मैं एक नई आईटी कंपनी हायर करूं और वो नए सिरे से सारा कुछ बनाए, क्योंकि वो 5-6 महीने लग जाते. इतना टाइम नहीं था. इतने टाइम तक हम सस्टेन ही नहीं कर सकते थे. दिस वॉज सच अ बिग प्रॉब्लम. सो उस फ्रेंड को देख करके, क्योंकि वो इतना खुश, मैंने उसको कम ही देखा था. क्योंकि मॉडलिंग लाइन के बारे में अगर किसी को थोड़ी सी नॉलेज हो तो मॉडलिंग में क्या होता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन करियर्स इन द वर्ल्ड. कि एड या कैंपेन मिल ही रहा होता है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है. और उसका रोज का था ये कि 3 महीने से लगा हुआ है पागलों की तरह फैशन वीक के लिए, फैशन वीक के लिए, फैशन वीक के लिए. जब फाइनली लिस्ट डिक्लेयर हुई, 1 दिन पहले तक भी उसका नाम आ चुका था, और लास्ट डे उसको बोला गया कि नहीं तुम नहीं हो, किसी और को ले लिया है. तो उसके लिए ये रोज का था. मतलब ये जो फेलियर्स, जो मेरा ये फेस चल रहा था ना, उसकी लाइफ में ये हर कुछ महीने में आता रहता था. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है? मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है. मतलब जब मैं अगर तेरी जगह हूं तो मुझे लगे कि यार दुनिया ही खत्म हो गई, छोड़ो ना मॉडलिंग कुछ और कर लेता हूं. इतना कॉम्पिटिशन, उसके बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स. मैंने तुझे देखा है कि उस दिन तू टेंशन में आता है, मेरे पास आता है रोता हुआ, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है. भाई चक्कर क्या है? कुछ ना कुछ कहानी तो है. तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मेरे ऊपर से निकल रहा था. मैंने उससे पूछा, वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूं. लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूं क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूं. तो मैंने कहा यार उससे क्या होता है?
कहता है अभी अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं बोलना कौन सा गाना है। कहता मुसु मुसु हंसी देव में लई लई। सुना है किसी ने गाना? मैंने यार तेरे को और कोई ढंग का गाना नहीं मिला, यही मिला है तेरे को, मुसु मुसु हंसी। कहता कि पूरी मेरी बात तो सुन भाई। कहता ये एक मूवी का गाना है, प्यार में कभी कभी। किसी ने सुना है ये गाना? हाँ ओके। सो कहता प्यार में कभी कभी मूवी का गाना है। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी। मतलब इसमें कोई भी पुराने एक्टर्स नहीं थे, सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। तो कहता है मैं जब भी इस गाने को सुनता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और अपने आगे ना एक सिचुएशन को इमेजिन करता हूं कि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ में हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं, तू है, मैं हूं, हम सब लोग हैं, और उस बड़ी स्क्रीन पे मैं हूं। यहां कितने कौन कोऑर्डिनेटर हैं यहां पे? आई थिंक विपुल इज देयर, राइट? विपुल, ताली बजाने के कितने पैसे देने पड़ते हैं यहां पे? नहीं तो आई वाज थिंकिंग जो अशोक जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको बाहर एक काउंटर लगा देते हैं कि अगर इतनी आवाज आएगी एक स्केल पे मेजर करेंगे, और वो स्केल आई एम श्योर आप लोग बना ही लोगे। इतनी आया, इतने डीबी पे इतना, इतने पे इतना, इतने पे इतना। एनी हाउ, सो तो उसने कहा कि मैं अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूं, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, बड़ी से बड़ी, जब ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा फेलियर है मेरा, वो मुझे छोटा लगता है उस सक्सेस के आगे जो अब धीरे धीरे मेरे अंदर वो सच बनती चली जा रही है। मुझे यकीन होता जा रहा है कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही है, सिर्फ टाइम का फर्क है। आज ये लोग यहां पे हैं, कुछ टाइम बाद मैं वहां पे होऊंगा, और अगले दिन मैं फिर हंसने खेलने लग जाता हूं, फिर मजे में आ जाता हूं। मैंने कहा सही है भाई, बढ़िया है। मैंने सुनने में बहुत छोटी सी चीज लग रही है। मेरा क्या फंडा रहा है शुरू से लाइफ में कि कुछ लोग होते हैं वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घुसते रहते हैं, बातें वाइज, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं, जिनको ना बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना करके समझने में और समझाने में बहुत मजा आता है। मैं उसका उल्टा हूं। जब कोई मेरे से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा होता है तो मैं वहां से उठ करके चला जाता हूं। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें इसी में कुछ चीजें ढूंढता रहता हूं, इसी में, और बिल्कुल छोटे से छोटी चीज ढूंढता हूं कि जो बड़ा इंपैक्ट डाल सके। कुछ बड़ी चीजें नहीं, बड़ा प्लान नहीं, कुछ नहीं। सो ये जो छोटी सी चीज सुनने में लग रही थी, ये मेरे को समझ आ गई थी कि कुछ बड़ा है इसके अंदर, कुछ तो है जो 4 साल से उसने इस लड़के को बांध के रखा हुआ है, जो कुछ भी नहीं था। सीखची पहलवान बोलते थे उसको, मतलब इतना पतला सा होता था जिसको देख करके लोग बोलते थे ये मॉडल तो क्या, ये कुछ भी नहीं बन सकता। और उसने ऐसी बॉडी बना ली एंड ही बिकेम वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल्स ऑफ दिल्ली। मतलब 4 साल में वहां से वहां तक आया मुसु मुसु हंसी की वजह से। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो कहानी है और इससे कुछ सीखना है। मैं इमीडिएटली घर गया, मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूं क्या होता है। क्योंकि मैंने कोरिलेट कर रहा था चीजों को। मैंने बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहां पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, तो वो मेरे माइंड में घूम गया जब उसने बात बताई। और उसमें बात करी गई थी पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में, कि अगर हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं, अब सुनने में ना ये चीजें बहुत बुकिश लगती हैं, लेकिन और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ा और आगे निकल गया। सुना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे निकल गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने दोस्त को करते हुए देखा तो मैंने कहा करके देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। घर गया, जा करके एक सीडी पड़ी हुई थी, ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था उसके अंदर। किसी को पता है कौन सा सॉन्ग है वो? लक्ष्य का मेन सॉन्ग, हाँ यही सपना है तेरा तूने इसे पाना है। और वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था। उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके, पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है, कुछ हो रहा है। और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार 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 बार। और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च क्वेरी भी 1 मिनट 2 मिनट लगा देती थी, और जब ज्यादा ट्रैफिक आया था तो साइट डाउन हो जाती थी कई घंटे के लिए। जिस वजह से
क्योंकि साइट डाउन रहती थी तो कोई आता ही नहीं था, या साइट इतनी स्लो थी इसलिए कोई नहीं आता था। तो मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा कैसे होगा, करता रहा। 3 दिन तक यही चीज चली। मतलब सुबह गाड़ी में ये गाना चलता रहता था लूप के अंदर, ऑफिस आया वहां पे गाना चलता रहता था, रात को घर पे चलता रहता था। 3 दिन बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, इतना कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूं और कैसे करूंगा, लेकिन मुझे यह पता था कि अब मेरी ये साइट आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर फास्टेस्ट साइट बनने वाली है। कैसे बनेगी ये मुझे नहीं पता था। और क्या होता है कई बार जब हम सवाल पूछते हैं ना या कोई चीज मांगते हैं तो उधर से जवाब मिलने लग जाते हैं एकदम से। तो रात के 3 दिन बाद करीबन 11:30 बजे हुए थे और मेरे अंदर से एकदम से ये सुन सुनकर मैं आधा पागल हो चुका था। सिर्फ पूरा पागल होने की कसर रह गई थी। 50 बार आप सोच सकते हो अगर एक ही गाने को सुन रहे होंगे तो क्या होगा, और आंख बंद करके इमेजिन कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? ओके, तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को। तो ये शीशा है, मैं उस सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूं कि मैंने उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या किया था। मैं मतलब आधा पागल या पूरा पागल आप कुछ भी बोल सकते हो मेरे को, वो मैं हो चुका था उस टाइम पे, उस 3 दिन बाद में। और इतनी एनर्जी थी अंदर से जब मैं ये लाइन गा रहा था कि अगर उस टाइम पे मेरे को कोई बोलता ना कि ये साइट फास्टेस्ट साइट बन जाएगी वर्ल्ड की, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस ये बीच में इतना बड़ा पहाड़ है इसको तेरे को हिलाना है, तो मैं हिला देता। मैं नहीं सोचता था कि वो हिलेगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता, अपनी पूरी जान लगा देता। मतलब इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर। तो वो गाना आया, धीरे धीरे चल रहा था ये इस रिदम पे। तो अगर आप में से किसी को चुटकी बजानी आती है तो आप बजा सकते हो इस तरीके से, राइट? ऐसे, हाँ, ओके। तो गाना चल रहा था, हाँ यही सपना है तेरा, तूने इसे पाना है, ऐसे ऐसे ये गाना। और फिर एकदम से वो लाइन आई शीशे के सामने और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं आंखें खोली, अपने आप को देखा और मैं शुरू हो गया। रोके तुझको आंधिया क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो ये अजीब सी लगी ये बातें सुनने में, लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसी अजीब चीजों में बहुत मजा आता है। तो ये जब किया, उधर से बाहर से मेरी मदर की आवाज आई, संदीप बेटा तुम अकेले नहीं रहते इस घर में। मैंने गेट खोला, मैंने कहा हाँ सॉरी मैं भूल जाता कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी हो, मैं अकेला क्यों एंजॉय कर रहा हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। उधर से मैंने अपनी मदर को ला करके बिठा दिया वहीं पे साइड में। मैंने कहा आप भी शो देखो, और मेरी मदर बैठी हुई है और मैं फिर से गा रहा हूँ, हाँ यही सपना है तेरा, so somewhat like that। मतलब उस टाइम पे मेरी मदर जाते जाते बोल के गई, कहती कि भाई संदीप तू तो पहले थोड़ा जोकरों वाली हरकतें करता था, अब लगता है कि तू पागल जोकर बन चुका है, मतलब तू पूरे तरीके से पागल हो गया है। मैंने कहा ठीक है अब जो है सो है, अब देखा जाएगा। उसके अगले दिन जब ये हुआ तो पूरी रात मेरे अंदर यही सब चलता रहा, सिर्फ वही चलता था। मैं गाना नहीं सुन रहा होता था, मैं इमेजिन कर रहा होता था कि एक ऐसी साइट होगी हमारी जो फास्टेस्ट होगी। प्रॉब्लम्स मुझे दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ सोल्यूशन दिख रहा था। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 6 बजे ऑफिस गया, अपने घर में से चाबी लेकर के, और 6 बजे जा करके बैठ गया। 8 दिन तक मैं अपने ऑफिस में था, दिन रात वहीं पे ब्रेकफास्ट, वहीं पे लंच, वहीं पे डिनर, पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरी, मैं कोई दुनिया का पहला इंसान नहीं हूं जिसको ये प्रॉब्लम आई है, ये दुनिया की पहली साइट नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसी साइट्स बनाई और पता नहीं क्या क्या किया, बस मुझे समझना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। और ढूंढते धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माई ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज, ताकि मैं उनके साथ बैठ करके उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकूं, उनसे बैठ करके फोटोग्राफी की बात ना करूं, प्रोग्रामिंग की बात करूं, हार्डकोर प्रोग्रामिंग।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ था हमारे साइट का, डेटाबेस डिजाइन। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिजाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा जो पीछे का स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल बेकार था। उसमें कुछ भी प्रॉपर तरीके से टेबल नहीं बनाए गए थे, कोई यूनिक वैल्यू अलॉट नहीं करी हुई थी, कोई इंडेक्सिंग नहीं करी हुई थी, कुछ नहीं था, सब बेकार था। तो मैंने जब वो सारा कुछ किया, डेटाबेस डिजाइन बनाया, पेपर पे ही अपना पेन पेपर ले करके, फॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसी रिपोर्ट मिली कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमारे स्टॉक फोटोग्राफी बिजनेस में अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो डिजाइन क्या होना चाहिए। खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब अलग ही एटमोस्फेयर था हमारे पूरे ऑफिस में। एक एक करके सारे अपने निगरों बैठ करके साइट को देख रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं, अबे देख नहीं रुक रही, अबे देख नहीं रुक रही, चल रही है, चल रही है। मतलब मेरा जो सपना था वो सच हो गया। जो था ना कि जैसे ही सर्च के ऊपर लेकर के जाए, कीवर्ड टाइप किया, सर्च के ऊपर एंटर मारा तो गोली की तरह साइट चले। तो वो जो चीज 2 मिनट लग रही थी, 1 मिनट लग रहा था, इट केम डाउन टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे ये चीज हुई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रैफिक आ गया साइट के ऊपर, लोग आने शुरू हो गए, सेल्स होनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं ऐसा लगने लग गया। Everything became okay and Images Bazaar became a success. और इसमें वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी? बहुत सिंपल है। ये छोटा सा गाना, वो मुसु मुसु हंसी दो लई ले, अगर उस टाइम पे मेरे को उसने वो बात नहीं बताई होती तो मैं चाहे कितना भी पढ़ लेता, कुछ भी कर लेता, अंदर से था कि करना है, लेकिन कभी भी इतना आगे तक नहीं पहुंचता, वो चीज नहीं कर पाता। दिस वॉज डे 1। डे 2, इनफैक्ट आज भी अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है या मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होता है, तो उससे रिलेटेड कोई गाना मैं पिक करता हूं और 3-4 दिन के लिए जोन में चला जाता हूं। 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जब दिन में 30-30, 40-40 बार उस गाने को सुनता रहता हूं। और उसके बाद में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कहां गायब हो जाती है मुझे पता भी नहीं लगता, मतलब वो सब हिस्ट्री हो जाती है, वो पीछे चली जाती है सारी की सारी। डे 2, हम फैमिली के साथ सब लोग बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। इट वॉज इन 2007। इमेजेस बाजार सक्सेसफुल हो चुका था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, सेल्स हो रही थी, क्लाइंट्स खुश थे, हम लोग खुश थे, सब खुश थे। और मुझे याद है, मैं ना वहां पे जब सबके साथ बैठा था तो मैं हंसी मजाक कर रहा था सबके साथ में, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था मेरे। देयर वाज समथिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन। और वो क्या था कि हमारा जो बिजनेस था, ये जो इमेजेस बाजार था, ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ स्टक एट द सेम लेवल। जैसे जो सेल्स जब सारे ठीक हुई, उसके बाद एकदम से ऐसे गई, देन इट वॉज मूविंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह, मतलब इट वॉज नॉट गोइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं हो रहा था। तो मेरे को वो जवाब समझ नहीं आ रहा था कि भाई चक्कर क्या है, क्या वजह है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। आई स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग, अपनी टीम से भी डिस्कस किया, नहीं समझ आया। मैंने कहा मैं क्लाइंट्स के पास जाऊंगा, क्योंकि काफी बुक्स में मैंने पढ़ा था, आई रेड दैट फिलिप कोटलर की 4 P's ऑफ मार्केटिंग और ये वो मार्केटिंग मैनेजमेंट सारा। तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उससे भी ऊपर होता है कस्टमर डिलाइट, आई एम श्योर आप सबने ये टर्म सुनी होंगी। उसके भी ऊपर होता है एक्सपीरियंस, जिसकी आज बात करते हैं कि कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस दे दो जिसको वो भुला ना पाए, आउट थ्रू हिज 5 सेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं वो सब कुछ करने के लिए मैं अपने सारे कस्टमर्स के पास गया, क्लाइंट्स के पास गया, मिलके आया उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ सर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं, उनको नहीं बोल रहा था कि हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे, बट मैं उनसे पूछ रहा था प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, कहते आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो अच्छी है, आपकी जो साइट है वो अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, कहीं कुछ तो होगा। कहते नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं आपसे। मतलब कस्टमर्स वर सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड, कस्टमर्स को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बहुत खुश थे, फिर भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे दिमाग में ना घुस नहीं रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। उस रेस्टोरेंट से जब खाना खा के हम नीचे उतरे तो मैं गया उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास में, जिनको हम प्यार से मामा बोलते थे, मैं और मेरे सारे दोस्त, उनके पास में गया। मैंने कहा मामा यार एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे एरिया में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, उसमें बहुत सारे तो बंद हो गए और कुछ है जो धक्का दे दे करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन आप हो, आपने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया था, एक सिंगल छोटी सी दुकान से, और आज आपने इतना एक्सपैंड कर लिया। मतलब पहले एक दुकान थी, अब आपकी ऊपर इतनी सारी दुकान ले ली, अपने 2 फ्लोर्स ले लिए और आप एक्सपैंड करते ही जा रहे हो, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो। भाई चक्कर क्या है,
क्या चक्राया, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कहानी। तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं कहा वो तो कह रहे ही, वो तो आप पे भी है, हम पे भी है, सब पे है, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो कहानी है। मैंने कहा ऊपर वाले की कृपा तो उन पे भी होगी, भगवान की पूजा तो रोज वो भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। कहते अरे नहीं बेटा कुछ नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ ना, बस मेहनत करो, लगन से काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं कहा नहीं मामा कुछ ना कुछ है, कुछ तो है, मतलब मैं नहीं मान सकता कि ऐसे ही, मतलब ये तुक्का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मैंने उनके मुंह पे बोला, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी है। मैं कहा तेरा लॉट ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स जिनका खाना आपसे अच्छा है फिर भी वो इतना नहीं चल रहे, और आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, भाई चक्कर क्या है, कहानी क्या है। कहते लगता है तू नहीं मानने वाला। मैंने कहा नहीं मैं बहुत जिद्दी हूं, नहीं मानने वाला, बताओ क्या है। कहते 1 घंटे बाद आइए फिर बताऊंगा। तो मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करके आया, सही 1 घंटे बाद मैं उनके पास में खड़ा हुआ था। मैंने कहा आप बताओ क्या कहानी है। मैंने कहा चल मेरे साथ। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काउंटर समेटा, ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगे। मैं और वो दोनों गए उनकी किचन में चले गए। पहले तो मैं किचन देख करके हिल गया। उनकी किचन ऐसी थी जो शायद किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा साफ थी, बिल्कुल क्लीन, मतलब चमक रही थी एक एक चीज, ऐसा लग रहा था कि अभी नई सेटअप हुई है, जबकि सालों हो गए थे उनको सेटअप हुए। फिर उन्होंने जा करके अपने आदमियों से बोला जो भी वहां पे किचन में काम कर रहे थे, हाँ भाई होगा सबका, चलो समेटो। फिर उन्होंने अपना इशारा किया, अपनी देसी भाषा में जैसे बात कर रहे हैं उन्होंने वैसे बात करी। और मेरे को अभी भी एग्जैक्ट याद है वो मोमेंट कि क्या सिचुएशन थी। 3 लोग, उन्होंने 3 बड़े बड़े भगोने उठाए, पतीले होते हैं भगोने, बड़े बड़े बोल, उसमें एक में दाल मखनी थी, एक में ग्रेवी थी, एक में थोड़ा डार्क से कलर की ग्रेवी थी, एक में थोड़ा लाइट कलर की ग्रेवी थी। वो 3 थे, वो उठाए और बाहर निकल गए, वहां से नीचे सीढ़ियों पर जाने लग गए, नीचे उतरने लग गए, नीचे गए, सड़क पे चले गए, मैं भी पीछे पीछे। मैंने कहा देखता हूँ भाई क्या चक्कर है, क्या कहानी है। सड़क पे जा करके उन्होंने तीनों ने वो ले जा करके नाली में डाल दिया मेरे सामने। अब मैं यहाँ पर रहा हूँ, वहाँ पे मामा जी खड़े हुए हैं और वो नाली में डाल रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या है मामा, ये इससे आपकी सक्सेस का क्या कनेक्शन है, ये क्या दिखा रहे आप मुझे। तो कहते बेटा तूने मुझसे पूछा था कि क्या वजह है, तो यही है वो वजह। मैं आई एम सॉरी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं हिल गया। मतलब अगर आज मैं कहूँगा कि सक्सेस को ना 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक है फाइनेंशियल सक्सेस विच इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहता है फाइनेंशियल सक्सेस इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो पता नहीं भाई, मेरी समझ से बाहर है वाली सारी बातें। और दूसरा है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि मतलब खुद की खुशी, कि अंदर तक आदमी खुश हो सके। तो अगर मैं अपने फाइनेंशियल सक्सेस का क्रेडिट किसी को दूंगा तो वो उनको दूंगा, उनके इस डायलॉग को। ये जो डायलॉग उन्होंने बोला सिंपल सा था लेकिन उसने हिला दिया था। वो था कि मैं हर रोज अपनी खुशी के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं। उन्होंने बोला ऐसे चले गए, मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है। वो गए अपने काउंटर के पास में, जा रहे अपने लोगों को बोला भाई शटर डाउन करो और चलो घर। मैं गया उनके पास में, मैंने कहा मामा मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज थोड़ा सा समझाओगे। कहते बेटा बहुत सिंपल है, तो एक काम कर, घर जा, अभी तो पूरी रात पड़ी, आराम से सोच, नहीं समझ आए तो कल फिर आ जाइए यहाँ पे, आकर के फिर से देख लियो, जब हम इसको नाली में बाहर होंगे कभी ना कभी तो समझ आएगा ना। कहते हर बात मैंने तेरे को समझा दी तो उसका फायदा नहीं है, खुद समझ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर गया, नींद नहीं आ रही थी, सोचता रहा, दिमाग चल रहा था। मैं कहा इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से निकल रहा था। मैंने कहा पेपर पे लिखता हूँ। पेपर पे लिखा उनका ये पूरा डायलॉग। मैंने कहा इसको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा, एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा। तो उसका पहला पार्ट कि मैं हर रोज, मैंने कहा समझ आता है, इसका मतलब यहां तक समझ आता है कि हर रोज, देखो मोटा मोटा तो समझ आ गया था लेकिन अंदर तक नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरे को अंदर तक समझना था उसका जो मैसेज था, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट था जो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने हर रोज मतलब कि ये रोज का है इनका, डेली ये उठा उठा करके नाली में फेंकते रहते हैं अपना ये सब ग्रेवी और ये दाल और ये वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपनी तसल्ली के लिए, ये सेकंड पार्ट था उसका।
मतलब कि वो ये जो कर रहे हैं वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी और की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे। कोई और कौन? मैं जो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, या मेरे ऐसे और बहुत सारे लोग, मतलब कि उनके कस्टमर्स, कि वो मेरी तसल्ली के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मुझे वो 3 दिन तक भी वो बासी खिलाते रहेंगे मुझे पता भी नहीं लगने वाला, मुझे क्या किसी को पता नहीं लगने वाला। तो ये वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा ये इसका मतलब कुछ अलग है यार, जो मैंने बुक्स में पढ़ा है। बुक्स में बात की है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट और ये वो, यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। ये अपनी तसल्ली की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा हमारी प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस बाजार की प्रॉब्लम क्या है, कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जा करके रुक गए हैं, अटक गए हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, शांति से बैठ जाओ ना, बस और कुछ करने की क्या जरूरत है, कस्टमर को सेटिस्फाई करो ना, वो कर दिया, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट अब मेरे को समझ आने लगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू whom। लोग हमारे जो क्लाइंट्स थे वो बोल रहे थे कि मैं इमेज बाजार से सेटिस्फाइड हूं। क्यों? क्योंकि और जितनी भी उस टाइम पे स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज थी वो मीडियोकर काम कर रही थी, वो एवरेज काम कर रही थी। तो उनके कंपैरिजन में हम उनको अच्छे लग रहे थे। जो कहावत है ना, अंधों में काना राजा तो कुछ वैसी कहानी थी। तो इस वजह से हम शांति से बैठे हुए थे। हमने कहा हाँ सब सही है, सही है, सही है। तो यहां पे समझ आने लगा, मेरे को समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है। और उसका जो लास्ट पार्ट था उनके डायलॉग का, कि मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं, इस डायलॉग ने मुझे हिला के रख दिया अंदर तक। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक बढ़िया बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। कोई है यहां पे जो बढ़िया बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? कुछ लोग हो सकते हैं शर्म की वजह से हाथ ऊपर नहीं कर रहे। ओके, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से मेरी इस बात को समझ पाओगे। हमारी फैमिलीज में, मैं हमारी फैमिलीज नहीं बोलूंगा, नहीं तो हो सकता है आपको बुरा लगे। हमारी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पॉलिथिन्स हैं वो 1 महीने बाद उतारते हैं। मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज सुनी है, सीखी है बचपन से आज तक, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न्ड। कि बेटे पैसे को बचाओ, पैसे को बचाओ, किसी भी तरीके से बचाओ, कहीं से भी बचाओ, कुछ भी करके। और क्यों बचाओ उसका भी मैं आपको निचोड़ बता देता हूं, किस लिए बचाए जाते हैं पैसे। कि या तो प्रॉपर्टीज खरीदो, या फिर अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी करानी है, होने वाले बच्चों की शादी कराने के लिए। तो ये 2 वजहें होती हैं जो दिमाग में बहुत गहराई तक घुसी हुई थी, कि पैसे को बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा था जो मैंने बचपन से आज तक सीखा था, कि जो बिजनेस में से कमाई हो रही थी, इट वॉज अ सेल्फ फंडेड कंपनी, तो जो भी कमाई होती थी उसमें से एक पार्ट, अच्छा खासा पार्ट निकाल करके मैं साइड कर देता था। निकाल करके या तो एफडी करा दी, या पैसा जोड़ने लग गया कि आने वाले टाइम में इससे प्रॉपर्टी लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इस तरीके से मैं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो। समझ आया। मैंने कहा कि यही दम चाहिए, ये करना है किसी तरीके से, और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उनके पास में गया, जब उनका वो रेस्टोरेंट खुला था। मैं गया, मैंने जाकर के बोला, मैंने कहा मुझे समझ आ गया है, मुझे समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, हाँ, मैं कहा मुझे समझ आ चुका है कि इसका मतलब क्या है। वो कहते बता। मैं कहा आप बस मुझे ये बता देना कि मैं सही हूं या गलत। मैं कहा इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया, मतलब इस दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, और उनमें से मैं भी एक ही हूं, कि पैसा बचाने के लिए अपनी तसल्ली को नाली में बहा रहे हैं, और आप उसका उल्टा कर रहे हो। आप में दम है उसका उल्टा करने का, इसलिए आप इतने सक्सेसफुल हो। लाइक वो आराम से खड़े होकर के मेरे को देख रहे थे, और थोड़ी देर बाद आए मेरे पास में आकर के बोले, कहते संदीप जिस चीज को समझने में मुझे पूरी जिंदगी निकल गई, तूने एक रात में समझ ली, तू बहुत आगे जाएगा, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उन्होंने यहाँ पे ऐसे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला जा। अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कर, जो तेरे को समझ आया है बिल्कुल ठीक आया है, मैं तेरे से नहीं पूछूंगा तेरे को क्या समझ आया है, जो तूने बोला वो सही है, बिल्कुल सही है। अब जा अपने बिजनेस में जा करके इसको अप्लाई कर और आगे बढ़ जा, जा, तुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। मैं गया, जा करके
मेरे से रुका नहीं जा रहा था। फिर एक एक सेकंड भी बहुत भारी लग रहा था जब मुझे समझ आ चुका था ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हम एक लेवल पे अटके हुए थे, क्यों हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, स्टैग्नेंट हो गया था सब कुछ। मैं गया जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई, जा करके उनको बोला, मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके, कहते ये क्या बोल रहे हैं। मैं कहा सॉरी, मैं समझाता हूं कि हमें क्या करना है। हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मेरा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन। क्लाइंट्स गए तेल लेने, भूल जाओ क्लाइंट्स को, वो क्या बोलते हैं। क्लाइंट्स बोलते हैं बहुत अच्छी इमेजेस है, हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो बेकार है, डिलीट करो। मैंने कहा अब तक हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में उस टाइम सब क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि एक शूट में से जितनी ज्यादा इमेजेस हो सके निकाल लो, भर दो साइट को, इसमें लाखों इमेजेस होनी चाहिए, करोड़ों इमेजेस होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, एक दिन में हम अगर 100 इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ 25-30 इमेजेस करेंगे, लेकिन वो 25-30 इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाएं देख करके, तुम्हारी भी और मेरी भी। क्लाइंट्स को छोड़ो, उनकी तो मतलब आंखें फटेंगी राइट। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि देखो एक आइडिया तो ये है कि हम अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें। मैंने कहा और बताओ, इसको और सिंपल कर देता हूं तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा, ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए। छोड़ो क्लाइंट को, छोड़ो मुझे, पैसा कितना भी लग जाए, बह जाए, कोई टेंशन नहीं है। कहते अब तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा बताओ क्या क्या कर सकते हैं। कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे। अभी हम इंडियन यूज कर रहे हैं ज्यादातर, लाइट्स और ये वो सारी चीजें। कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैंने कहा ले लो, डन। मैंने कहा कल ही लो, परसों तक भी नहीं रुकेंगे। वो हो गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए, वो अभी हमारा एक बजट है 5-7 हज़ार रुपए का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना है। कहते 20-25 हज़ार रुपए में बहुत अच्छी लोकेशन आ सकती है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इंडिया से हम फॉरेन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे, वहां जाकर के शूट करेंगे। करो, बढ़ा दो पैसे को जितना बहता है, मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। उसके बाद में मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। कहते जो मॉडल्स हम ले रहे हैं, वी वर टेकिंग एट दैट टाइम, जब कंपनी के शुरू के 1 साल तक हम ले रहे थे 2 से 3 हज़ार रुपए पर डे के बजट के मॉडल्स। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपेंसिव मॉडल्स लेते हैं इन द रेंज ऑफ 10-15,000 रुपीज पर डे तो कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने कहा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट जहां हम 1,000-2,000 रुपए के बजट में चल रहे थे 5-10 हज़ार, ऐसे हर चीज का बजट बढ़ा दिया। एंड में जो हमारा फैशन डिजाइनर, इन हाउस हमारी टीम में एक फैशन डिजाइनर था, उसने आकर के बोला, कहते कि जो हम गारमेंट्स परचेज करते हैं ना, वो नॉर्मली हम जैसे रोड साइड मार्केट्स हैं वहां से लेके आते हैं, तो एक जो ब्रांडेड शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो जहां 1,000 रुपए की हमें 100 रुपए की मिल जाती है। तो कहते ये तो ऐसे ही चलने देना। मैंने कहा नहीं। कहते लेकिन क्लाइंट को तो पता भी नहीं लगने वाला, हम तो वैसे भी लोगों को हटा देते हैं। स्टॉक में क्या होता है कि लोगों को हटाया जाता है, मतलब यू कैन नॉट अपलोड अ टी शर्ट और अ शू विद द लोगो ऑफ अ क्लाइंट, उसको हम रिमूव करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग करके, रीटचिंग करके। मैंने कहा क्लाइंट को नहीं पता लगता, मुझे तो पता है ना, तुम्हें तो पता है ना, ब्रांडेड लेंगे, ब्रांडेड। आज के बाद हमारी कंपनी में अनब्रांडेड कुछ नहीं आएगा, बहा दो पैसे को, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। पागलों की तरह सब लोग काम करने लग गए, सब खुश। मतलब एक्साइटमेंट किस लेवल पे था, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। उस टाइम पूरी की पूरी टीम का, सबको इतना मजा आ रहा था। रोज एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था, जो और किसी भी साइट से पता नहीं कितना बेटर था। पहले हम उनसे कॉम्पीट कर रहे थे, अब हम एक डिफरेंट लीग में थे, वी वर इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। हम अपने आप से कॉम्पीट कर रहे थे। हम कह रहे थे और इसमें हम पहले हम ये सोच रहे थे हम यहां से कैसे पैसे बचा सकते हैं, कि यार 3,000 का मॉडल है ना, ऐसा करो इसको छोड़ो 2,000 का ले लो। ये हमारा पहले माइंडसेट था। अब हम कह रहे थे कोई बात नहीं यार, 3,000 का नहीं लेंगे, 10,000 का मॉडल लेंगे, 20,000 का लेंगे, लोकेशंस लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शूट किए ऐसे बहुत सारे। 2 महीने बाद पूरी की पूरी ये नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे, जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा, ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इन 1 मंथ। कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। पहले हम पता नहीं कितनी ऐड कर रहे थे, कितनी मार्केटिंग, कितनी एडवर्टाइजिंग, क्या क्या कर रहे थे, फिर भी ट्रैफिक नहीं आता था, चला जाता था। इट वॉज ऑल नीड बेस्ड। अब जो आ रहे थे लोग, वो वर्ड ऑफ माउथ इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ, इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन।
मैं देख करके हिल गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? कॉल्स बढ़ गई हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम में, एकदम से टीम बढ़ानी पड़ी, मैं खुद वहां पे बैठना पड़ा मेरे को जाकर के, इतनी कॉल्स आने लग गई, सेल्स बढ़ गई। टू गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर्स, पहले साल में जब हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी तो पहले पूरे साल की जो हमारी टर्नओवर थी वो थी 45 लाख, 45 लाख रुपए, राइट। इसके बाद जब बताऊंगा तब तालियां बजाना, तब ज्यादा मजा आएगा। 45 लाख पहले साल की टर्नओवर। जब मैंने कहा था कि हमारा बिजनेस स्टक हो गया था, वी वर स्टक एट अ लेवल ऑफ 4-5 लाख रुपीस पर मंथ, उसके आगे जा ही नहीं पा रहे थे, बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और हम बहुत खुश थे क्योंकि उस टाइम पे जो इंडस्ट्री लीडर था, हमारी स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री का इंडिया में जो लीडर था, आई नॉट नेम दैट, उसकी टर्नओवर थी 2.5 करोड़, और वो पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में था। तो उसको देख करके हम बहुत खुश थे कि सब कुछ सही है ना यार। अगर हम 4 साल में भी उस लेवल पे पहुंच गए तो कोई बुरा थोड़ी है। अगर हम 4 साल में भी पहुंच गए, उसको 20 साल लगे पहुंचने में, हम 4 साल में तो पहुंच ही जाएंगे ना जिस स्पीड से जा रहे हैं। बट जब ये किया, पैसे को नाली में बहाया, उसका रिजल्ट ये आया, अगले साल की हमारी जो टर्नओवर थी, अगेन इट वाज बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एवरीथिंग। नेक्स्ट ईयर इट वेंट फ्रॉम 45 lakhs to 3 crores। उसके अगले साल 6 करोड़, उसके अगले साल 10 करोड़, उसके अगले साल 16 करोड़। इवन इन दोज टाइम्स जब मार्केट में रिसेशन चल रहा था, द सो कॉल्ड रिसेशन, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ था, स्पेशली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे पूरे वर्ल्ड में, उनकी रेवेन्यू नीचे जा रही थी, एंड वी वर ग्रोइंग बाय मोर देन 60% ईयर ऑन ईयर, इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस टाइम पे भी। ओके, और इस तरीके से वो चीज एक्सपैंड होती चली गई, और आज भी हम ग्रो करते चले जा रहे हैं। मतलब जो इंडस्ट्री साइज था उसको तोड़ करके इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई। इट वॉज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब हम थे इसमें, जब शुरू किया था, बट आज ये अपने आप में इतना बड़ा हो गया। उसके बाद में कैन वी प्लीज हैव साइलेंस हियर इफ यू डोंट माइंड? यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जाके बात कर सकते हैं? ओके। ओके, सो दिस वॉज द डे 2 ऑफ माई लाइफ, सेकेंड डे जब ये हुआ। वो रेस्टोरेंट वाला ये डायलॉग जो मेरे अंदर तक बैठा और जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे, एंड नाउ वी आर इवन लार्जर देन ऑल अदर इंडियन स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज पुट टुगेदर इन इंडिया। मतलब वी आर हैविंग अ वर्चुअल मोनोपोली इन द मार्केट इन दिस स्पेस। ऑलमोस्ट ऑल द एड्स दैट यू सी इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट से यहां तक जब आ रहे थे तो रास्ते में जितने भी होर्डिंग्स थे उन सब में से मेजॉरिटी ऑफ द होर्डिंग्स, मोर देन 80% ऑफ दोज होर्डिंग्स पॉलिटिशियंस के होर्डिंग्स छोड़ करके बाकी जितने भी ब्रांड्स के होर्डिंग्स थे उन सब में हमारी इमेजेस थी। हम देख ही रहे थे कि ये हमारी है, हमारी सारी हमारी इमेजेस। सो यहां से आई वो सबसे बड़ी सक्सेस। डे 3 2011, इमेजेस बाजार बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, इतना सक्सेसफुल, और उसकी वजह से मेरे पास इतना कुछ था जितना मुझे चाहिए था उससे बहुत ज्यादा था। फॉर अ 30 ईयर ओल्ड गाय उस टाइम पे मेरे पास वो सब कुछ था जो भी मैं सोच सकता था, मतलब किसी भी हद तक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे लड़ाई चल रही थी मेरे दिमाग में और दिल में, बड़ी तगड़ी लड़ाई थी। दिमाग मेरा बन चुका था एक एंटरप्रेन्योर का, बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा था कि ये जो हमारा बिजनेस है इमेजेस बाजार, चाहे कितना भी अच्छा हो, बट हम एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स इन अ B2B सेगमेंट, ये B2C नहीं है। सो देयर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन ग्रो। साल का अब हम 30-40% से ग्रो कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं ये चाहूँ कि इसकी रेवेन्यूज को यहां से बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दूं तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक आइडिया आया, उस आइडिया पे काम करना मैंने शुरू किया। ऑलमोस्ट 5 महीने तक मैंने काम किया दिन रात उस आइडिया पे। I'll tell you that idea, वो क्या था। इट वॉज वेरी सिंपल, एयर प्यूरिफायर्स। इंडिया में हर घर में आज की डेट में एक वाटर प्यूरिफायर है,
बट एयर प्यूरिफायर का किसी ने नाम तक नहीं सुना है. ऑन द अदर हैंड, penetration rate of air purifiers in countries like North America is more than 30%. In Japan, it's more than 17%, and it's growing like anything in all over the world. India में अभी तक एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है, या ये कह लो कि ब्रांड रिकॉल नहीं है किसी भी ब्रांड की. So the plan was ready, business plan was ready, market research हो चुका था, marketing strategy was ready, investors were ready. एक PE firm से लास्ट स्टेज पे काम चल रहा था, मतलब हमारी लीगल जो फॉर्म है वो उसका मैंडेट को हम स्टडी कर रहे थे और कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स को, और सिर्फ मेरे को एक साइन करने की देर थी. वहां से फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आना था, उस बिजनेस को हमको शुरू करना था. एंड आई वाज 110% श्योर कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इट्स गोइंग टू बी $1 बिलियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, क्योंकि मार्केटिंग का इन सब चीजों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था यहाँ से, तो सब कुछ क्लियर था. तो ये एक ऐसा पाथ था जिसपे मैं चल चुका था पहले भी. बिजनेस है, चाहे हम छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें, वेदर वी डू इट इन B2B और B2C, और मुझे क्लियर दिख रहा था कि ये होगा. और बड़ा मन कर रहा था वो करने का, सच बताऊं तो. मतलब वो अंदर से ऐसी अर्ज थी कि रुका नहीं जा रहा था, पता नहीं किस लिए बट रुका नहीं जा रहा था. दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग ऐसे सोच रहा था, दिल कह रहा था कि मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था जब ये कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी, इमेजेस बाजार, उससे काफी साल पहले, जब मैं अराउंड 22-23 साल का था, कि अगर मैं जिंदगी में कभी कुछ बन गया, तब मैंने और बहुत सारे काम किए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली की कंडीशंस काफी खराब थी, तो मैंने कहा था अपने आप से कि अगर मैं कभी कुछ बन गया जिंदगी में, तो मैं अपने तक नहीं रखूंगा उन सारे एक्सपीरियंसेस को, शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ, वैसे लोगों के साथ जो मेरी तरह ही कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं है जो आ करके जिनसे वो रिलेट कर सकें. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 50-60 साल की एज में, बहुत सारे लोग हैं, बट देयर इज नोबडी जो उन्हीं की एज ग्रुप का हो, जो उन्हीं की लैंग्वेज में आकर के उनसे बात कर सके. तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं करूंगा ऐसा कुछ. लेकिन फिर जैसे जैसे बिजनेस में घुसता गया, ये सारी चीजें पीछे साइड में चली गई, डस्टबिन में चली गई. मैंने कहा छोड़ना, कौन करेगा. आई वाज काइंड ऑफ पोस्टपोनिंग इट. मेरे को था कि करना तो है, लेकिन मैं सोच रहा था इस बिजनेस को करने के बाद कर दूंगा, प्रॉब्लम क्या है, 10 साल बाद कर दूंगा, जब इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन की होगी तब कर दूंगा. फिर अंदर से दिल ने कहा कि अगर उस टाइम पे मेरे को एक और आइडिया आ गया $100 बिलियन का, तो क्या करूंगा. या अगर मैं 10 साल तक जिंदा ही नहीं रहा तो क्या करूंगा यार, क्या करूंगा, कहां जाऊंगा. तो मैंने कहा नहीं, जो करना है मुझे आज करना है. 2:30 बजे रात के, इट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. वो बिजनेस प्लान को मैंने फाड़ा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की पूरी फाइल बनी थी उसको फाड़ा, जो इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको फाड़ा, ले जा करके डस्टबिन में डाला. अपना हैंडी कैम ऑन किया, मतलब मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं. उस टाइम पे हैंडी कैम ऑन किया और जो मन में चल रहा था वो रिकॉर्ड कर दिया कि अब मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. अगले दिन उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया उस वीडियो को, और ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में, फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी. और एक ऐसी चीज करी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है. मन में डर था, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने यही किया था. तो मैंने कहा अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला. और उसको करना शुरू किया. शुरू में बहुत छोटे लेवल पे, ऑफिस में एक छोटी सी जगह बना ली, वहां पे सिर्फ 20-25 लोग आते थे. वो भी इस तरीके से आते थे जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं आकर के. मतलब 50 लोग रजिस्टर करते थे, उसके बाद में उसमें से 25 लोग आते थे. वो भी उसमें से बहुत सारे लोग कभी मोबाइल पे बात कर रहे होते थे, कोई बीच में से चला जाता था. धीरे धीरे, बट आई वॉज काइंड ऑफ, मेरे को मजा आने लगा वो करने में. मुझे लग रहा था कि हाँ यही है वो कॉलिंग. मतलब कुछ था, मुझे नहीं पता था इसको करके क्या होने वाला है. पागलपन था, बेवकूफी थी. ऑफिस में भी सब सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. घर वाले कह रहे थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फ्री के सेमिनार्स, क्या फंडा यार. और ओपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई भी आए, कहीं से भी आए. पहले 25 लोग आए, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ. उसके बाद में 30-40 लोग आने लगे हर हफ्ते. सैटरडे को 11 से 1 का टाइम होता था. फिर धीरे धीरे और लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए हर हफ्ते के. उसके बाद में जगह कम पड़ने लग गई, तो हमने एक ऑडिटोरियम हायर करना शुरू कर दिया दिल्ली में. वहां पे हर हफ्ते के 400-500 लोग आते थे और ये सेमिनार्स मेरे चलने लग गए. फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स. इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आने लगे. एंड इट वाज एब्सोल्युटली फ्री. मतलब ऐसा नहीं था मैंने लिखा और किया कुछ, हर चीज वहां पे फ्री थी, कुछ भी नहीं. उसके बाद में फाइनली मुझे समझ आ गया कि अगर इस तरीके से सेमिनार्स करता रहा तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू वेयर आई कैन रीच. तो इसको मारना होगा अगर इसको जिंदगी भर के लिए जिंदा रखना है तो मैंने सोचा कि उसको मार दूंगा. 20th October
आई कंडक्टेड माई लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार एट त्यागराज स्टेडियम, जो अभी आपने देखा। हमने एक्सपेक्ट किया था करीबन 4-5 हज़ार लोग आएंगे, उस दिन 8 हज़ार से ज़्यादा लोग आए ऑल ओवर इंडिया से। और मुझे वो मोमेंट याद है जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मैं वहीं साइड में खड़े होकर के देख रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन है, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं। और जब मैं वहाँ से नीचे उतरा, उधर आया, स्टेज पे आ करके अपना वो सेमिनार ख़त्म किया, तो लाइफ में पहली बार मैं रोया था। मतलब 30 साल की एज में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। फैमिली में अगर किसी की डेथ भी होती थी तो मैं नहीं रोता था, बाकी लोग सब रो रहे होते थे, मैं साइड में खड़ा होता था। उस दिन मेरे से रुका नहीं गया। आई स्टार्टेड क्राइंग वहाँ पे सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में और हज़ारों लोग उस स्टेडियम में बैठे थे। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था वो वर्ड्स में। शायद वो लोग कर पाएंगे जो वहाँ पे थे, वो भी रो रहे थे साथ में। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे रो रहे थे। उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरी वाइफ, मेरा 5 साल का बेटा, सब लोग थे। तो उसके बाद जो फीलिंग हुई वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद में जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ तो मेरी मदर आई, आ करके मेरे को कस के पकड़ लिया, हक कर दिया। और ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया, ना मेरे फादर ने ना मदर ने। मैंने बड़े बड़े मेरे को अवार्ड्स मिल गए, बिजनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ किया, लेकिन कभी इतना खुश मैंने किसी को नहीं देखा, ना अपने आप को ना किसी और को। वो आई, उन्होंने आ करके मेरे को कस के हक किया और बोला कि बेटे मुझे तुझ पे गर्व नहीं है, मुझे तुझ पे नहीं है, मुझे अपने आप पे गर्व है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं। और उस दिन कुछ अजीब सा हो रहा था। मैं वहां पे खड़ा हुआ, उधर से मेरी मदर रो रही, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था किसी तरीके से, मैं अपने रोक रहा था। उधर मेरे फादर खड़े हुए। अब मेरा और मेरे फादर का रिलेशन शुरू से ऐसा रहा है कि अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। जब सामने आते हैं तो कुछ नहीं, एकदम चुप, पीछे से ठीक है, मन में बहुत कुछ है। उस दिन मेरे फादर रो रहे थे, वो वहां पे साइड में खड़े हुए। वो आए, आ करके उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, गले मिले। फिर मैं भी रो रहा, मैं रो रहा, यहाँ पे मेरे फादर रो रहे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा सब देख रहे। और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद में ना मैं हिल गया पूरे तरीके से। मेरे को समझ नहीं आया मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं। उन्होंने कहा, गले मिल गए, शाबाश बेटा, तूने हमें अमर कर दिया, अमर कर दिया तूने हमें। आई वाज लाइक, मैं कहा ये हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ऊपर से निकल रहा था। और उसके बाद से जो मेरी फीलिंग है, लाखों लोग इस सेमिनार को ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हार्डली 1-1.5 महीना हुआ है इसको ऑनलाइन गए हुए, ऑलरेडी काफी लोग देख चुके हैं इसको ऑनलाइन। इट हैज काइंड ऑफ बिकम वायरल, बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं जगह जगह से। और जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो पढ़ के कई बार मतलब आंखें गीली हुई हो जाती हैं, मतलब ऐसी सी एक फीलिंग होती है। तो इस फीलिंग को अगर मैं चाहूं भी एक्सप्रेस करना, तो मैं इसको कोई नाम नहीं दे सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सक्सेस है, हैप्पीनेस है, क्या है। मतलब एक ऐसी फीलिंग है जैसे अगर कोई आग में जला हो और वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आग में जलने का वो दर्द कैसा होता है, वो जलन कैसी होती है, कि क्या हालत होती है। वो सिर्फ वही समझ सकता है जो उस आग में जला हो, कभी वो समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक है, वो कहेंगे यार ये छोड़ना यार, क्या है, होगा, दर्द होगा, और क्या है। लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूं एक्सप्रेस करने की, तो वो कुछ ऐसी है फीलिंग कि अगर अभी आप मुझे ऑप्शन दो कि या तो ये 10 प्राइवेट जेट हैं, ये मैं रख सकता हूं, या ये जो मेरी फीलिंग है, जो मैं अभी फील कर रहा हूं, या जो मैंने तब फील किया, ये सब करके जो मैं कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक चीज को मैं रख सकता हूं और दूसरे को मुझे बस हटाना होगा, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, आग लगा दूंगा उन 10 के 10 प्राइवेट जेट में। ये है मेरे लिए सक्सेस आज के टाइम में। क्योंकि ना मुझे अब जा करके असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। तब नहीं समझ आता था, जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं कॉलेज में था, उसमें था, तब नहीं समझ आता था। तब लगता था कि यार फेरारी का मतलब सक्सेस है। आज मैं चाहूं तो जितनी फेरारीज चाहूं उतनी ले सकता हूं, लेकिन आज मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है, आज कुछ और है। सक्सेस क्या है? वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस,
कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहें भागते रहें भागते रहें, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी, हर चीज, आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस। दैट इज सक्सेस फॉर मी। एंड एट द एंड, इस सेमिनार के एंड में मैं आपसे बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने पूरे दिल से मैं आप सब लोगों के लिए, बिकॉज यू आर द वंस जो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं, कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो मैं अपने पूरे दिल से सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूं कि आप कुछ भी करो, कहीं भी रहो, जो भी करो, आप बस अपने पूरे दिल से हमेशा खुश रहो। Thank you, sir. It has been a mesmerizing experience and very emotional too. Now, we have time only for 2 questions from the audience, because this has been very straight from his heart. So, anything from the audience? Hello, I'm sir. so sorry अगर मैंने एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी कर दिया यहाँ का। आप हो सकता है संडे के मूड में हो गए, अपना वही मटरू की बिजली का मंडोला वाले मूड में, और मैं यहाँ आकर के पता नहीं क्या कर रहा था यार। Anyhow, yeah. Sir, you have been role model of many people, but I just want to know who is your role model? Okay, so I think we should give a big hand for her. It's a very good question. Yeah. For me, business में it's Steve Jobs, Apple, और बाकी अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें स्वामी विवेकानंद, उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। Hello, sir. It's not a question; it's a request. If I would come to you and the question you asked to the mama of the restaurant, what will you say to me in your own words, irrespective of that? एक मिनट, मैं शायद समझा नहीं। हाँ, आप कह रहे हो कि अगर वही क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा था, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे इन दैट लाइन? जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आपने उनसे पूछा था, उन्होंने जो आंसर दिया था, आप उस आंसर को कैसे मुझे बताओगे? मैं बता चुका हूं ना, एक लाइन में उन्होंने एक लाइन बोली, आप उस एक लाइन। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो जो उन्होंने एक लाइन बोली थी, अगर उसको मेरे को अपनी एक तरीके से एक और एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलो? उस लाइन को ना 1000 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका उसका ये हो सकता है कि हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, बट अब मुझे समझ आ चुका है कि जो नहीं दिखता वो उससे ज्यादा बिकता है। सिंपल है। सो इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स कि हम वर्ड्स को कहां से कहां लगाते हैं। जो मैसेज है, जो कोर मैसेज है, वो ये है कि हमारे में हिम्मत होनी चाहिए अपने पैसे में आग लगाने की। क्योंकि मैंने अपने सेमिनार में बोला है कि पैसे की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में सिर्फ इतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हम लोग पागल हो पा रहे हैं, अपनी गाड़ी को पेट्रोल से भर लिया है, सिर्फ पैसा 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 पैसा। उसकी वजह से क्या हो रहा है सब देख ही रहे हैं। So, yeah, next question. Okay, thank you, Sandeep. Hi. Thank you so much. I think what he was trying to ask कि आपकी one line motto क्या है? मतलब उनका एक one line motto था अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए। हाँ। तो आपका क्या है? Oh, okay. So, मेरा फंडा बहुत सिंपल सा है लाइफ का कि एक कोट है which says if you have a reason to die for, you will live forever. तो काटनी है जिंदगी तो कट जाएगी, कैसे भी कट जाएगी। मगर उस चीज में है कि आपको पता है कि यहां पे जाओगे और कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल की सुनो एंड यू जंप इनटू द अननोन। एक ऐसी दुनिया में जहां आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, और वहां का जो चीज है जो निकल करके आती है ना, जो रेवलेशन है, वो कोई आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता वो क्या है, वो फीलिंग्स, वो क्या सेंसेशंस होती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। एनी हाउ, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Sir,
I have So something I to think ask. last question. Yeah. I have something to ask. Can Yeah. I was just asking कि sometimes we face the problem of being indecisive, right? We cannot decide whether to do this or that, and often at both the ends we have some merits and some demerits. So at such situations, how should we tackle? It's again a very good question. Yeah. Let's give a big hand for her. So she's just talking about confusion. और अगर मैं थोड़ा सा ना ज़ोडिएक साइंस को मानता तो नहीं हूँ लेकिन पढ़ता जरूर हूँ, तो आई एम अ लिबरल. तो लिब्रा जितने भी होते हैं वो बाय डिफॉल्ट थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट? अगर किसी ने पढ़ा हो ज़ोडिएक साइंस के बारे में. तो जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं डिसीजन बहुत तेज लेता था, लेकिन जब से पढ़ लिया तो बैक ऑफ द माइंड मेरे बैठ गया कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ. तो मैंने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने क्या किया कि अब मैं करता पहले हूँ, सोचता बाद में हूँ. कि अगर अंदर से कोई चीज आई कि मुझे ये चीज करनी है तो पहले मैं करता हूं, बाद में सोचता हूं कैसे करना है. आई डोंट गेट इनटू दी लॉजिस्टिक्स कि इसको ऐसे करूं वैसे करूं वैसे करूं. फॉर एग्जांपल जब इस सेमिनार को शुरू करना था, ये जो मैंने फ्री सेमिनार्स करे और करे, तो अगर मैं सोचता रहता कि एक दिन जब इतने लोग आएंगे तो मैं ये करूंगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई सिंपल सा फंडा है, अब ये करना है ना, हाँ करना है. अगले दिन जा करके न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दी. तब तक ना तो साइट रेडी हुई थी, ना मुझे ये पता था मैं कहां करूंगा क्या करूंगा, ऐड निकाल दी. अब मैं फंस गया ना, अब तो ऐड आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब पीछे नहीं हट सकता ना. अब ऐड आ गई, अब बाद में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं. मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम था, ऐड 1 हफ्ते बाद आनी थी, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने सब कुछ किया. और अब भी मैं जो भी कुछ करता हूं ज्यादातर ऐसे ही करता हूं. एक टाइम फिक्स कर देता हूं कि 1 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल जब ये करना था त्यागराज स्टेडियम में, जब ये मेरा लास्ट सेमिनार हुआ, तो उस टाइम पे मैं बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहा था कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कोई नहीं जल्दी गया, 6 महीने बाद कर लूंगा, 1 साल बाद कर लूंगा. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा अगर ऐसे ही करता रहा तो करता रहेगा, एक काम कर जाकर के बुक करा दे स्टेडियम. मैं गया जाकर के स्टेडियम बुक करा दिया. जब वो बुक कराया तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर बाकी सब चीजें अपने आप हो गई. सो सिंपल, अपने आप को कहीं पे ले जा करके फंसा दो, अटका दो, ताकि आप पीछे ना हट सको. Where there is no looking back. अपने ब्रिजेस जो है उसको जला दो, खत्म. टाइम हो गया है ना? हाँ, I think this is the last हमको question. जाना है वहाँ पे ना, एक्चुअल में अभी फ्लाइट है हमारी. राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन. सर बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, और उनको कैटेगरी करना कि बिजनेस ओरिएंटेड और एजुकेशन या एकेडमिक साइड वो सही नहीं रहेगा, बट आपके काफी जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो आपने अपने बिजनेस में यूज किए. और मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना कुछ कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी कमेंट हम एकेडमिक्स वालों के लिए अगर कुछ दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो जान के. तो थोड़ा टफ होगा लेकिन अच्छा होगा कि अगर वो एक कमेंट मिला आपसे. मैंने अगर कमेंट दिया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा यहाँ से. मैं कॉलेज ड्रॉप आउट, तो मैं ये कहूँगा छोड़ दो कॉलेज. नहीं सर, शायद वो फेलियर ही हमें अच्छा सक्सेस दे. नहीं, जस्ट किडिंग. देखिए, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल आई कैन से इज कि ना, जो भी करना है ना, सिर्फ एक थॉट है, एक सीड है, उसको प्लांट कर दो अपने अंदर. ज्यादा सोचो मत कि मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, वो बनूंगा. सिर्फ एक चीज, एक थॉट को, एक आइडिया को अपने माइंड में प्लांट कर दो, जो मेरे माइंड में कभी प्लांट हुआ था कि जो करना है अपने दिल से करना है यार, बस किसी को दिखाने के लिए नहीं करना. ये बड़ा गंदा ट्रैप है यार. मैं उस ट्रैप में भी रहा हूं, उस फेज में भी रहा हूं, उसमें भी रहा हूं, उसमें भी रहा हूं. मतलब नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, बीच में, ये सारे फेजेस देखे. और इस साइकिल से, ये जो रेस लग रही थी ना, जिस रेस में कहते हैं कि इवन इफ यू विन दैट रेस यू आर स्टिल अ रैट रेस की जो प्रॉब्लम बोलते हैं. सो इस रेस में जब तक भागते रहेंगे, अभी यू माइट बी थिंकिंग बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, ये फेज बिल्कुल अलग है उस फेज से. आज लगेगा कि नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा. मेरे भी सारे दोस्त यही बोलते थे. आज कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा. कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई वहां लगा हुआ है, कोई वहां लगा हुआ है. बोलते थे हम ये करेंगे, वो करेंगे. इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप. हमें पता है कि ये एक झूठ है. जैसे एक मूवी देख रहे होते हैं ना सिनेमा हॉल में जा करके, हमें पता है मूवी है, फिर भी इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस मूवी में कि रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं. चलो हंसना छोड़ो, रोने लग जाते हैं. मतलब 2D फिल्म का ये असर हो रहा है हमारे ऊपर. तो इस ट्रैप का क्या असर होगा? ये जो पैसे का ट्रैप है, जब आता है ना पैसा चारों तरफ से, तब बड़ा मजा आता है. उस टाइम पे निकल करके वो करना जो आपका दिल कह रहा है. आपके अंदर से आवाज आ रही होती है यार क्या कर रहा हूं, उसी ऑफिस में बैठ करके बार बार वही काम कर रहा हूं, बार बार साइकिल में. लेकिन फिर जब बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखता है तो लगता है चलने देना यार, क्या फर्क पड़ रहा है. जो करना है 1 साल बाद करूंगा ना, 2 साल बाद, 3 साल बाद,
अरे किसके पास टाइम है? किसको पता है कि हम कितने टाइम तक यहाँ पे रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो जो करना है, दिल में जो हो कि मेरे को ये करना है, उसको जल्दी करो, जल्दी करो। थोड़ी सी जल्दीबाजी होनी चाहिए। हाँ, so thank you so much. Thank you, sir, for sparing your precious time, and wish you good luck and hope to see you again among us, and wish you uncountable success, and My pleasure. we will meet again hopefully here.